Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Vishnu Prakash R. Pungalia Limited's Q2 and H1 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Ms. Hena Khatri from Valorum Advisors. Thank you, and over to you, ma'am. Thank you, Sagar. Good evening, everyone, and a very warm welcome to you all. My name is Hena Khatri from Valorum Advisors. We represent the investor relations of Vishnu Prakash R. Pungalia Limited, or a VPRPL. On behalf of the company, I'd like to thank you all for participating in the company's earnings call for the second quarter and first half of the financial year 2026. Before we begin, let me mention a short cautionary statement. Some of the statements made in today's earnings call may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are subject to risk and uncertainties, which could cause actual results to differ from those anticipated. Such statements are based on management beliefs as well as assumptions made by and information currently available to the management. Audiences are cautioned not to place any undue reliance on these forward-looking statements and making any investment decisions. The purpose of today's earnings call is purely to educate and bring awareness about the company's fundamental business and financial quarter under review. Now let me introduce you to the management participating with us in today's earnings call and hand it over to them for opening remarks. We have with us Mr. Manohar Lal Pungalia, Managing Director, Mr. Jayant Pungalia, Project Coordinator, and Mr. Sarfaraz Ahmed, Chief Financial Officer. Thank you, and over to you, sir. Mr. Manohar? Thank you, ma'am. सभी उपस्थित माननीय प्रतिभागियों को मेरा सादर अभिवादन एवं इस वर्चुअल कॉल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी जानकारी हेतु मैं सबसे पहले कंपनी के अति संक्षिप्त विवरण के साथ शुरुआत कर रहा हूं। वीपीआरपीएल वर्ष 1986 से कार्यरत है। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य संपादित करने वाली कंपनी है, जिसके पास भारत में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, विश्व बैंक परियोजनाओं और निजी निकायों के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है। कंपनी को प्रमोटर एवं प्रमोटर ग्रुप के विभिन्न आयु वर्ग के 13 सदस्यों व 115 से अधिक अनुभवी इंजीनियर, प्रबंधक एवं वित्तीय विशेषज्ञों का सक्रिय योगदान प्राप्त है, जिनकी कर्मशीलता, लगन एवं परिश्रम द्वारा कंपनी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। परिचालन संबंधी मुख्य बातें इस प्रकार है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 21-22 माह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी दबाव में रहा है और हमारी कंपनी भी इससे अछूती नहीं रही है। पेमेंट काफी देरी से हो रहा है, इससे कंपनी की वर्किंग कैपिटल बढ़ गई है तथा इसका असर कंपनी के टर्नओवर व मार्जिन पर भी पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद हमारे मूल सिद्धांत मजबूत हुए हैं। 30 सितंबर 2025 तक हमारी ऑर्डर बुक 5,001 करोड़ रुपए की है, जिससे अगले 2 से 3 वर्षों के लिए राजस्व की संभावना बनी हुई है। गत वर्ष के दौरान हमें जलापूर्ति, रेलवे, सड़क और भवन निर्माण क्षेत्रों में 1850 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 14 परियोजनाओं के कार्यादेश प्राप्त हुए। उल्लेखनीय परियोजनाओं में 382 करोड़ की बीकानेर रेलवे स्टेशन रिनोवेशन प्रोजेक्ट, लगभग 270 करोड़ रुपए का अजमेर चंदेरिया रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना, बेल छत्तीसगढ़ से 248 करोड़ रुपए का एक बड़ी सिविल योजना का आदेश, जयपुर में 30 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ शहरी सीवरेज में हमारा प्रवेश और जोधपुर में फिनटेक डिजिटल संस्थान के साथ हमारी पहली संस्थागत भवन परियोजना शामिल है। ये परियोजना न केवल
हमारी क्षमता के पैमाने को दर्शाती है, बल्कि हमारे पोर्टफोलियो के विविधीकरण को भी दर्शाती है। 12 राज्यों में हमारी उपस्थिति का विस्तार करती है और एक अखिल भारतीय ईपीसी खिलाड़ी के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करती है। इस वित्त वर्ष 2025-26 की प्रथम छमाही की कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष की इस अवधि की प्राप्तियों से लगभग 3% कम होकर 572 करोड़ रुपए रही है। राज्य सरकारों से सितंबर माह के बाद प्राप्तियां बढ़ी है। इससे आने वाले समय में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों का और भुगतान होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि वर्ष के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि भी एक चुनौती रही है। कुछ राज्य विभागों में से भुगतान में देरी ने कैश फ्लो पर दबाव डाला और अस्थायी रूप से प्रॉफिट को भी प्रभावित किया। हालांकि हमने इस स्थिति का सक्रिय रूप से समाधान किया है। नई बैंकिंग व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, विभागों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना और प्राप्त राशियों की वसूली हेतु कड़े प्रयास करना। हमें उम्मीद है कि कई प्रमुख राज्यों में चुनाव संपन्न होने के साथ वित्त वर्ष 2026 में भुगतान चक्र सामान्य हो जाएगा। साथ ही प्रमोटर द्वारा मार्च 2025 तक धनराशि लगभग 59 करोड़ रुपए के निवेश से बढ़कर अब हम सितंबर 2025 तक 229 करोड़ की हो गई है, जिससे निवेश से कंपनी के कार्यशील पूंजी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही इससे उधार पर हमारी निर्भरता कम हुई व आने वाले समय में वित्तीय लागत कम होगी और परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन के लिए तरलता में सुधार होगा। बीपीआरपीएल वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे के विस्तार द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त अवसरों को पहचानता है। वित्त वर्ष के लिए 2.52 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय आवंटन के साथ 2.52 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के आवंटन के साथ सरकार ट्रैक विस्तार, विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा संवर्धन जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सिविल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए बीपीआरपीएल बड़े पैमाने पर रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्ध होने वाले अवसरों का लाभ लेने हेतु रणनीतिक रूप से तैयार है। इसी क्रम में हमारा स्टील स्ट्रक्चर व गर्डर प्लांट अपनी पूर्ण कार्य क्षमता पर कार्यरत है। इस प्रकार की इन हाउस निर्माण क्षमताओं के साथ हम कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना परियोजना लागत को कम करने में सक्षम है। रेलवे क्षेत्र, जिसका गत वित्तीय वर्ष में कंपनी के ऑर्डर बुक में लगभग 15 से 17% योगदान था, अब सितंबर 2025 में बढ़कर 33% का हुआ है। इन कार्यों में प्रमुखतः रेलवे ट्रैक बिछाना, रेलवे स्टेशन और संबंधित भवन, प्लेटफॉर्म और पुलों आदि के निर्माण जैसे सभी कार्य सम्मिलित है। कंपनी के पास नई निविदाओं में भाग लेने के अवसरों की एक आशाजनक स्थिति है, जिसमें आने वाले महीनों में नए कार्यादेश प्राप्त होने की भी संभावना है। यह स्थिति कंपनी को निरंतर विकास की ओर बढ़ने के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। हमारी कंपनी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवंटित कार्यों को अपने समस्त मानव एवं मशीनरी संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने लंबे अनुभव एवं संसाधनों के बलबूते हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे एवं कंपनी के अंशधारकों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। कंपनी में विश्वास जताए रखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः आभार। अब मैं गत वर्ष में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालने हेतु हमारे सीएफओ सरफराज अहमद से अनुरोध करता हूँ। Thank you. Good evening, everyone. The operating revenue for the second quarter stood at 296 crores, which decreased by around 12% year-on-year basis. EBITDA for the quarter stood at 24 crores, declining by around 50% year-on-year basis, with EBITDA margin at 8.25%. Net profit for the quarter was 4 crores, with a PAT margin of 1.25%. For the first half, revenue stood at 572 crores,
declining by 3% year-on-year. EBITDA stood at 56 crores, down 32% year-on-year basis, with an EBITDA margin of 9.84%. Profit after tax stood at 11 crores with a PAT margin of 1.87%. Before moving ahead, I would like to briefly address the movement in margin during the quarter. The moderation in EBITDA and PAT margin was largely due to higher working capital utilization during the early part of the quarter, slower repayment releases from three water supply projects, and initial mobilization expenses on newly commenced project. These are temporary impacts. Additionally, we have recognized an ECL provision of 8.5 crores based purely on the aging of receivables. This is a notional conservative provision and does not reflect any concern regarding recoverability. With receivable inflow improving significantly from October and with external borrowing reducing due to increased promoter support, we expect interest costs to be declined and margins to gradually improve as execution picks up in the second half of the year. Now, coming to the liquidity and balance sheet update. We have demonstrated a strong financial discipline during the first half of the financial year. Total banking and non-banking financial company exposure reduced to 488 crores as of September 25 compared to 648 crores in March 25. Promoter support has been significant, with interest-free unsecured loan increasing from 60 crores in March 25 to around 229 crores in September 25. This reduction in external borrowing, coupled with higher promoter support, will meaningfully lower interest costs in the coming quarter. Receivable collections have also improved, aided by significant payment release from Rajasthan government in October. Execution has been stable across water supply and railway segments, and we expect further improvement as fund flow normalizes heading into Q3 and Q4. Now, I'll request Mr. Jayant Pungalia to provide operational highlights for the quarter under review. Thank you, sir. Good evening, everyone. During the quarter, project execution remained steady across our ongoing works. We achieved an on-time delivery rate of over 90%, supported by efficient deployment of manpower, machinery, and materials. Our teams have been working across multiple states, and overall site progress has been stable despite the industry-wide challenges earlier in the year. Our order book stands at over rupees 5,001 crores, providing clear visibility for the next 2 to 3 years. The mix continues to remain well diversified across water supply, civil infrastructure, and railway-related projects, along with specialized works for public sector undertakings. This balanced portfolio supports execution stability and gives us strong visibility across segments. On the business development side, our bidding pipeline remains healthy at over rupees 3,000 crores, with tenders submitted in roads, bridges, urban infrastructure, and renewable-linked construction. We continue to evaluate opportunities selectively, aligned with our strategy and execution capabilities. Internally, our focus remains on operational efficiency, backward integration, and disciplined cost control. Our in-house manufacturing, testing, and maintenance facilities continue to support delivery quality and help us maintain cost competitiveness. Bidding pipeline and improving liquidity across key states, we expect execution momentum to strengthen further in the coming quarter. With this, we can now go for the question and answer session. Thank you very much. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and then 1 on their touchtone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Again, to register for a question, please press star and then 1.
Our first question comes from the line of Rajesh Pandari from Nakoda Engineers. Please go ahead. नमस्कार सर एंड गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हाँ, मेरे को आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल. अच्छा, हाँ सर, ये ऑर्डर बुक अपना जितने करीब 5,000 करोड़ का है और अपनी क्वार्टरली जो एग्जीक्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास है, 300 करोड़. तो इसमें तो एज इट इज 4 साल लग जाएंगे सर. और अगर 2-3 साल की ऑर्डर बुकिंग है तो उसमें तो फिर एलडी पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी. नहीं सर, जैसे 5,000 करोड़ है ना, तो एग्जीक्यूशन इसी साल में काफी सारा होना है. करीब मोर देन 1,500 करोड़ के आसपास का एग्जीक्यूशन पेंडिंग है, वो होगा. उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी करीब दोनों साल मिला के 50% के आसपास एग्जीक्यूशन होना है सर. अभी मतलब नेक्स्ट 6 मंथ में 1,500 करोड़. नेक्स्ट 6 मंथ प्लस FY27 अगर बात करें तो ओवर 50% एग्जीक्यूट होनी है ऑर्डर बुक सर. हाँ, नहीं 1,500 करोड़ जो आप बता रहे हैं वो अगले 6 महीने में हो जाएगा. 6 महीने में नहीं कह रहा हूँ सर मैं, जो मैं हाँ, पेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन जो ड्यू होता है ना सर, स्टेज कंप्लीशन. हाँ सर, हाँ सर, हाँ एग्जीक्यूशन होना है. तो मैं ओवरऑल लास्ट मतलब मार्च 26 और 27 दोनों मिला के आपको बता रहा हूँ, करीब 50 से 55% एग्जीक्यूट होगा सर. अच्छा. और अभी नेक्स्ट 12 मंथ से 12-18 मंथ में क्या ऑर्डर एक्सपेक्टेड है सर? सर जो अभी बिडिंग पाइपलाइन हमारा 3,000 करोड़ का है, कुछ ऑर्डर अच्छा. अभी अंडर इवैल्यूएशन चल रहे हैं. हाँ तो सर. हमारा रेशियो जो हिस्टोरिक सक्सेस रेशियो 17-18% रहता है. हाँ. अकॉर्डिंग हम भी उम्मीद कर रहे हैं सर. और अभी हमारे पास जैसे जो एग्रेसिव बिडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी सफिशिएंट ऑर्डर बुक है हमारे पास. जी है हमारे पास. और अभी जो इतना अपना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है सर, जिसकी वजह से अपने पोजीशन भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन टू द नेट प्रॉफिट, कि कब तक इम्प्रूव होने का है चांस सर? सर जैसा कि ये लास्ट 22-23 महीनों से ये एक्यूमुलेट हुआ है सर. जी सर. हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है. और अभी सितंबर ऑनवर्ड्स भी काफी पेमेंट्स रिलीज हुए हैं सर. इवन राजस्थान गवर्नमेंट से भी रिलीज हुए हैं. उम्मीद कर रहे हैं सर 2-3 क्वार्टर में लग करके कहीं ना कहीं नॉर्मल सिचुएशन आएगी सर. हाँ, मतलब मेन प्रॉब्लम कहाँ है सर? ये जल जीवन में है. हाँ, जल जीवन में है सर. तो जल जीवन में कितना अपना पेमेंट और क्यों नहीं मिल रहा है सर? ये जल जीवन का खाली आपका ही प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बहुत बड़ी कंपनियों की भी प्रॉब्लम है सर ये. हाँ, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है दिक्कत सर. ये तो हाँ, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इस बात को देख पा रही है सर? तो उसके लिए तो हम क्या कमेंट्स कर रहे हैं. रिप्रेजेंटेशन तो जा रहे हैं सर, सब रिप्रेजेंटेशन. जी. हाँ. डिपार्टमेंट से. तो मतलब उम्मीद करें सर अगले 6 महीने में चीजें इम्प्रूव होगी. हाँ, काफी कुछ हुई है और हो भी जाएगी आगे धीरे. जी. और सर मेरा 2 सवाल और है. एक तो कल्पेरू के साथ जो अपना जॉइंट वेंचर है उसमें डिस्प्यूट क्या है सर? व्हाई इट कैन नॉट बी रिजॉल्व? सर मैं बता देता हूँ. 2-3 साल पहले. हाँ सर. हेलो. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सर. Rajesh sir, the line for the management has been disconnected. Please stay connected while we reconnect the line for the management back. Okay. Ladies and gentlemen, we have the line for the management reconnected. Yes, sir, please go ahead. हाँ सर. आप कल्पेरू का बता रहे थे सर. हाँ सर. जी. ये सर 28 करोड़ का छोटा प्रोजेक्ट था पहले, 4 साल पहले का. उसमें एग्जीक्यूशन कल्पतरू कर रहे थे और वो अलग कंपनी. हाँ, वैसे वो इंडिविजुअल एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो
सब हाँ सर, बन के कर रहे थे काम, तो उन्होंने काम स्लो किया था, इस वजह से हमने नोटिस दिया था हाँ और बैंक फ्रीज करवाया था। तो जस्ट उसको करने के लिए उन्होंने लगाया था कोर्ट में, तो हो गया, काम कर लिया अभी तो जी जी। तो अभी वो चैप्टर क्लोज हो गया सर? Sorry to interrupt, राजेश सर. हाँ सर, May we request you to return to the queue for any follow-up? हाँ, मैं खाली ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए बाद में आई कम बैक सर। खाली ये जो है अपना इसका कल्चरू वाला कि वेदर इट इज रिजॉल्व नाउ। यस सर। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि आपके उसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। नहीं सर, वो ऑडिट के जो बुक्स नहीं आती उसका लिखा हुआ है सर। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं वापस कुछ एक दो क्वेश्चन है जो बाद में आऊंगा सर लाइन में। श्योर श्योर सर। हाँ, Thank you. Our next question comes from the line of Lokesh Kashikar from Smith's Institutional Equities. Please go ahead. Yeah, hi sir. Thank you for giving me the opportunity. Sir, हमारा 790 करोड़ का रिसीवेबल्स है, उनमें से सर वाटर सेगमेंट में कितना होगा और रेलवे में कितना होगा? सर मेजरली वाटर सप्लाई में है 790 में। मैं आपको एक बार बाइफर्केशन बता दूं, करीब 260 करोड़ के आसपास का हमारा रिटेंशन पार्ट है। ओके। रिमेनिंग जो है 500 करोड़ में से मेजर करीब वाटर सप्लाई है, 70% के आसपास वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से है। लेकिन सर रिसीवेबल्स का जो पोर्शन है 790 करोड़, उसमें रिटेंशन नहीं होगा ना? आपका तो रिटेंशन अदर करंट एसेट में आएगा, करेक्ट? रिटेंशन मिला के आता है सर, इंक्लूडिंग रिटेंशन है सर। यस सर। अच्छा, तो इसमें से आप कह रहे हो कि वाटर सेगमेंट इज अराउंड 70%? यस सर। अच्छा, तो इसमें से अगर मैं पकड़ूँ कि 500 करोड़ के करीबन आपका वाटर सेगमेंट में हो रहा है, तो इनमें से सर अभी आप देख रहे थे कि 6-8 महीने में बेसिकली आपका जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स देख रहे थे आप, लास्ट क्वार्टर में आपने कहा था, तो अभी क्या पोजीशन है सर? पेमेंट्स आर गेटिंग रिलीज्ड और इट इज स्टिल स्टक? सर रिलीज हो रहे हैं बट पार्शियली मतलब रिलीज हुए हैं। अक्टूबर में भी काफी पेमेंट रिलीज हुए हैं, स्पेशली फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। सर लास्ट क्वार्टर में कितना मिला होगा हमें वाटर सेगमेंट में? लास्ट क्वार्टर में क्वांटम बताना है आपको? टोटल मेरा मतलब सर मूवमेंट बेसिकली मुझे पता करना है कि हमें कितना रिसीवेबल्स आए हुए हैं इन द वाटर सेगमेंट, एंड उसके अगेंस्ट में हमने कितना एग्जीक्यूशन किया हुआ है। टोटल जो मेरे को रियलाइज हुआ था 300 से लेके 325 के बीच में रिसीव हुआ था। 300 करोड़ का हमें रिसीव हुआ है जी, फ्रॉम द वाटर सेगमेंट ओनली? नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ सर। इसमें वाटर सेगमेंट कितना होगा? वाटर सेगमेंट का मैं आपको रेवेन्यू फिगर बता देता हूँ। सर करीब 55% वाटर से था। अच्छा, मतलब आप यू आर सेइंग कि अराउंड 350 का आपका 55% करीबन आपका 180 to 190 करोड़ आपका आया हुआ है। एंड सर उसमें काम कितना किया है इसमें क्वार्टर में? आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना होगा वाटर सेगमेंट से? नहीं, हमने वापस वर्क तो सेम उतना ही किया है वापस, जितना फंड आया उसके हिसाब से हमने एग्जीक्यूशन भी दे दिया है वापस। वो रेगुलर है सर, एग्जीक्यूशन नहीं हमने स्लो किया। अच्छा अच्छा, लेकिन सर फिर भी हम देखते तो बोरिंग्स तो आपका एलिवेटेड ही है, तो अभी आगे स्ट्रेटेजी क्या है कि मतलब जो भी एग्जीक्यूशन होगा, आप कह रहे हैं कि बेसिकली आपका आप देख रहे हैं कि 1500 से 1600 करोड़ का आपका रेवेन्यू देख रहे थे आप FY26 में, तो अगर आप वो वाला रन रेट भी पकड़े तो हमें ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का बेसिकली एग्जीक्यूशन करना है H2 में। तो उसके लिए सर आपका भी स्ट्रेटेजी क्या है कि आप क्योंकि जी हाँ, तो आपका अभी उसमें कैश फ्लोज का इश्यूज आ रहा है आपको, क्योंकि आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपका बोरिंग बढ़ते जा रहा है, तो आप अभी एग्जीक्यूशन का स्ट्रेटेजी क्या है? आप फिर से बोरिंग करके आप एग्जीक्यूट करोगे या डू यू थिंक कि ये पेमेंट जो है वो नॉर्मलाइज होके फिर, क्योंकि रन रेट बढ़ना चाहिए। आई एग्री कि आपको पेमेंट आ रहा है और आप उसके अगेंस्ट में आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, लेकिन आपको 1000 करोड़ का अगर H2 में करना है तो आपको बेसिकली उतना पेमेंट आना चाहिए जब आप 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर पाओगे, या फिर आपको बोरोइंग्स लेना पड़ेगा। तो आपका आगे जाके स्ट्रेटेजी क्या है और आप क्या आउटलुक है? मैं बताता हूँ।
मेरा जो जैसे वर्क इन प्रोग्रेस मेरा एग्जीक्यूटेड वर्क है वो ऑलरेडी करीब 700 कुछ करोड़ का 749 करोड़ का है जो मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। जस्ट सर्टिफिकेशन और कुछ अप्रूवल पेंडिंग चल रहे हैं, वो काफ़ी फंड तो वहीं से रिलीज होगा क्योंकि अभी भी जैसे आप देखेंगे ना तो ट्रैक्शन पहले से 50 करोड़ रुपये कम हुआ है मेरा WIP के वो 65 प्रोसेस को साथ ही साथ जितना फंड हमें रिलीज होता है उतनी वक्त हम वर्क करते हैं। पहले ये सपोज 5 रुपीज हुआ तो हमने 7-10 रुपीज कवर कर लिया, वो एग्रेशन था। लेकिन अभी जितना रिसीव हुआ उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। आपका आवाज क्रैक हो रहा है, sorry to interrupt sir, you're sounding a little bit distant right now. Okay, अभी क्लियर है? हाँ सर, कैन यू रिपीट योर आंसर? कुछ भी समझ में नहीं आया सर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मेरा वर्क इन प्रोग्रेस जो है ना सर, वो करीब अभी 750 करोड़ के आसपास का है। तो दैट इज ऑलरेडी वर्क एग्जीक्यूटेड बट सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल चल रहे हैं, वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। प्लस जितना मेरा जो फंड रिसीव हो रहा है वाटर सप्लाई रिलेटेड एक्टिविटीज से, उतना ही हम फंड वापस डिप्लॉय कर रहे हैं उससे। बिकॉज पहले मैं जैसे 5 रुपीज का पेमेंट मिलता मैं 10 रुपीज कवर कर रहा था, तो अभी उसको थोड़ा सा हमने जितना पेमेंट आ रहा है उतना ही लगा रहे हैं वापस। और साथ ही साथ फोकस कर रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट पे, ताकि क्योंकि वहाँ से कैश फ्लो फास्ट जनरेट होता है, इमीडिएट वहाँ से पेमेंट भी रिलीज होते हैं, तो वहाँ हम थोड़ा फोकस बढ़ा रहे हैं। तो आगे की स्ट्रेटेजी अगर देखें तो उसमें जैसे अभी अक्टूबर ऑनवर्ड भी हमें कुछ पेमेंट रिसीव हुए हैं, तो हमने एग्जीक्यूशन इधर रेलवे की तरफ भी ज़्यादा फंड लगाए, तो बेटर ही होना है सर आगे। लेकिन तो आप जो कह रहे हो कि 750 करोड़ है आपका वर्क इन एग्जीक्यूशन, वो सब बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा आपकी? क्योंकि आई अंडरस्टैंड क्योंकि तो अनबिल्ड रेवेन्यू में हो सकता है। नहीं हेलो सर, वर्क इन प्रोग्रेस में देखिए लोकेश जी, वर्क इन प्रोग्रेस में से कहाँ पे आता है? कैन यू क्लैरिफाई मी? अगर मैं बैलेंस शीट में जाके देखता हूँ। हाँ, तो स्टॉक देखिए सर। अच्छा, मैं आपको ऑफलाइन करेंट कर लूंगा। सेकेंडली सर, अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि अब ये 1600 करोड़ का आप जो कह रहे हो कि ये आप FY26 में अचीव कर लोगे? और क्या सर, क्या मार्जिन देख रहे हो? क्योंकि इस क्वार्टर में तो आपका मार्जिन थोड़ा म्यूटेड काइंड ऑफ ही था, मॉडरेशन आया था। तो डू यू थिंक कि 13.5% मार्जिन ड्यूरिंग H2 इज द पॉसिबिलिटी? सर ऐसा है, जैसे लास्ट क्वार्टर में भी प्रोमोटर्स ने काफी फंड इन्फ्यूज किया है, जो गैप था वर्किंग कैपिटल का वो सब्सटेंशियली कम किया है, और हमारा जो फ्लो है वो वापस नॉर्मलाइज हो रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम पिछले जो रेवेन्यू है उससे 10-15-20% बढ़ के आना चाहिए। ओके। अच्छा, मार्जिन पे क्या व्यू है आपका? मार्जिन पे सर, जैसे इंटरेस्ट फ्री फंड किया है, तो जब मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा हुआ था, जो मेरे डेट पड़े हुए थे वो रिड्यूस भी हुए हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा, तो ऑब्वियसली मार्जिन लेवल भी बढ़ेंगे। नो बट सर, एट एबिडा लेवल आप क्या देख रहे हो? इंटरेस्ट तो आपका बेसिकली एबिडा के नीचे आएगा, तो ऑपरेशनल कॉस्ट में भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, बट डू यू थिंक कि मतलब जो अपना नॉर्मलाइज लेवल था, लेट्स से 13.5%, वो आपका H2 में अचीव हो जाएगा? श्योर सर, बिल्कुल। ठीक है। दैट्स द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. A reminder to all the participants, if you wish to register for a question, please press star and then 1. Our next question comes from the line of Shashikant Srinivasan, an investor. Please go ahead. Hey, hello. I have two questions. The first one is more a request, right? I am an individual investor with a significant investment in BPRPL, and I am from the southern part of India. So the first 10 minutes was spoken in Hindi. I couldn't understand anything. I think it's a fair expectation that a company which has gone for an IPO across India, they communicate in English. That will be great. Even if there is a summary, that will be great, right? I totally appreciate Mr. Jain and Mr. Sarfaraz's commentary. That was great, right? So that is just a request. The second question I have, that will be great. Even a summary, right? Whatever Manohar sir had spoken for 10 minutes,
a 2-minute summary in English will be great, right? A lot of my friends also have invested from southern part of India. So I'll just move on to the second question. My main question is, totally appreciate the promoters' infusion in, I think, in the month of September. The only challenge I faced was I have been invested from 250 levels. I think the stock price came all the way from 180 to 90 rupees, right? Day in, day out, there was continuous selling day in, day out, right? Was there no other way to infuse the money which led to so much drop in the stock price from 180 levels to 90 levels, right? It is very, very sad and disappointing as a retail investor who put so much faith in the company, because nowhere else you will see this kind of a heavy selling in the market, crashing the stock price by 50%. That's all is my question. Yes, sir. Thank you for your appreciation. And there are multiple options we are looking for, but as of you know that this is need of time, and this investment supports a lot to the company. That's why we have taken this type of decision, and this is a big support from the promoter. Okay, sir. Yeah, thank you. I will continue to remain invested. I hope that from Q3 the numbers become better so that the stock price goes back to the earlier levels. Thank you. Definitely, sir. Thank you. Thank you. Our next follow-up question. Before we take the next question, a reminder to all the participants. You may press star and then 1 to ask a question. Our next follow-up question comes from the line of Rajesh Bhandari from Nakoda Engineers. Please go ahead. Sir, thank you for giving me chance once again. सर ये अपने Q2 26 में तो टर्नओवर है अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ है 297, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है सर, नेट प्रॉफिट जो है वो अपना 3.3 करोड़ है, तो फाइनेंस कॉस्ट भी जो है वो 17.8 करोड़ है, विच इज मोर और लेस सिमिलर टू इसका लास्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर बिफोर लास्ट. तो इतना कम क्यों हुआ है सर ये प्रॉफिट, ये मेरा एक क्वेश्चन है. और दूसरा आपने जॉइंट वेंचर्स का जो बताया है, 3-4 जॉइंट वेंचर है, वो कौन से हैं और कौन कौन से काम के हैं वो बताइएगा. और क्या FY 26-27 में हम एक्सपेक्ट करें कि पोजीशन विल बी गुड. सर मेजरली जो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, और प्लस जो हमने नए प्रोजेक्ट में ज़्यादा फोकस किया है उसकी मोबिलाइजेशन कॉस्ट की है, उस वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट है जो टेम्परेरी है. और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑब्वियसली क्वार्टर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले से कम होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी वापस सेम लेवल पे आएगी सर. और जहाँ तक कुछ जेवीज है वो करीब हमारे 18 जेवी ऑपरेशन है जो चल रहे हैं जी. अच्छा, मतलब एवरी प्रोजेक्ट इज ए काइंड ऑफ ए जेवी. नहीं, एवरी प्रोजेक्ट नहीं है, जिसमें कुछ एलिजिबिलिटी का रहता है तो वहाँ टेक्निकल सपोर्ट लेना होता है. एग्जीक्यूशन कंप्लीट 100% हमारा ही रहता है. अच्छा, जैसे BNG, व्हाट इज BNG, व्हाट इज RBI, PL, JDA? यस सर, दीज आर द सपोर्टर कंपनी जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया है. हाँ. बेसिकली जिस प्रोजेक्ट में हम लोग इंडिविजुअली क्वालिफाई नहीं होते हैं, वहाँ पे हम ऐसे पार्टनर्स देखते हैं जो हमारे को टेक्निकल सपोर्ट देते हैं. टेक्निकल सपोर्ट, ओके. हाँ, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं. जो एग्जीक्यूशन होता है दैट इज डन 100% बाय अस. मतलब एग्जीक्यूशन इंटरफेरेंस नहीं है. नहीं है सर, एग्जीक्यूशन इंटरफेरेंस नहीं सर. हाँ, और सर FY 26-27 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर उम्मीद कर रहे हैं बेटर होगा, इससे तो बेटर ही होगा. नहीं, इससे तो सर बेटर ही होगा, इससे अब नीचे कहाँ जाएंगे सर? पहले बताया सर 15-20% हम ग्रोथ के साथ आएंगे. चलिए ठीक है सर. थैंक यू. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Our next question comes from the line of Akhil Jain, an investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Please go ahead. Yeah. So actually, so thanks.
infusion of funds. Sorry to interrupt, sir. Sir, your line was breaking and we could not get the first part of the question. If you can please repeat. Yeah. So my question was on the infusion of funds from the promoters. So how much of that is actually used as working capital and how much of that is used to repay debts? And my second question is that, so we are already facing a trade receivable problem from the past couple of quarters. And right now we see that there is a 56 crore increase from last quarter, Q2 to Q3. Q1 to Q2 in terms of trade receivables. So shouldn't this come down as a soothing factor? I mean, while the trade receivables is still going up, shouldn't it come down in the downward trajectory? And when can we expect that? सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, जिसमें जो हमने इन्फ्यूज किया है, प्रोमोटर्स ने जो इन्फ्यूज किया है, उसमें करीब 60 करोड़ रुपीस तो हमने डेट पेमेंट किया, बाकी सारा हमने वर्किंग कैपिटल यूज किया। और सेकंड जो था आपका, जो डेटर्स लेवल बढ़ा है, सर हमारा क्या है कि कुछ जैसा आप देखेंगे तो ट्रैक्शन है इन प्रोग्रेस में, वो करीब 50-60 करोड़ का है, जो पहले से कम हुआ है। तो जो बिल सर्टिफाई हुए वो डेटर्स इंक्रीज हुए हैं सर मेजरली, बाकी जो एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मल है। तो अभी क्या ट्रैक्शन शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं और फर्दर गोइंग फॉरवर्ड ये और रियलाइज होंगे सर। So one more question. इसमें कि you mentioned that you have received some funds in October. So can you give us any idea about this? How much has been recovered or received? सर ये करीब 100 से 125 के आसपास हमें रिसीव हुआ है, आउट ऑफ विच करीब 50% पोर्शन वाज रिसीव फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। Okay, thank you. And how much more are you expecting in the current quarter? सर बजट एलोकेशन हो रखा है और अभी फर्दर फंड्स आने वाले हैं, तो अभी उम्मीद है कि काफी रिलीज होगा गोइंग फॉरवर्ड जो थर्ड फोर्थ क्वार्टर में। Okay, thanks. All the best. Hoping for a good quarter. Thank you. Our next question comes from the line of Devesh Rathi, an investor. Please go ahead. Hello. हेलो हेलो। यस सर। सरफराज जी, जब अपने को जो फंड इन्फ्यूजन करना था तो हमने स्टॉक प्लेजिंग क्यों नहीं कंसिडर किया? हमने इतने प्रमोटर ने इतनी हेवी सेलिंग करी है, उससे शेयर का प्राइस इतना नीचे आ गया, उसके बजाय अगर हम स्टॉक प्लेज करके फंड इन्फ्यूज करते तो वो बेटर नहीं होता? सर हम मल्टीपल मार्केट जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे थे, जो इनिशियली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें लगा, उस टाइम में प्रमोटर्स ने डिसीजन लिया। तो गोइंग फॉरवर्ड वो सही बात है सर आपकी, पर उससे क्या है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक नीचे गिरने से फिर वो थोड़ा सा मतलब इफेक्ट आता है उनको भी साइकोलॉजिकली। यस सर। दूसरा मेरे को पूछना था कि पहले जो अपन ने गाइडेंस दिया था 15 से 20% ग्रोथ का, क्या अभी भी अपन मेंटेन कर रहे हैं कि उतना अपन ग्रोथ करेंगे करंट ईयर में, या इस साल थोड़ा नीचे रहेगा? क्योंकि जैसे लास्ट कॉल पे भी डिस्कस हुआ था कि आपने ही क्वेश्चन किया था या किसी इन्वेस्टर ने किया था कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर का तो हमने पहले ही बताया था कि ये सिमिलर लेवल रहेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड थर्ड फोर्थ क्वार्टर अच्छा रहेगा सर। मतलब यहाँ से वापस ग्रोथ जो है वो क्वार्टर 3 से वापस ग्रोथ होगी रेवेन्यू में? सर उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी अभी काफी फंड रिलीज किए हैं, प्लस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ रहा है कि अब एग्जीक्यूशन करो और हम भी फंड के लिए अरेंज करके आपको दे रहे हैं, तो हायर लेवल की भी ऑथोरिटीज है वो सपोर्ट में है। सर इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है वो काफी सपोर्ट कर रही है जल जीवन मिशन को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं रिलीज कर पा रही है, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना अपना शेयर सेंटर के पार्ट पे दे रही है। ओके, तो ये जो फंड इन्फ्यूजन जो प्रमोटर ने किया, ये बैलेंस शीट में कहाँ पे दिख रहा है? सर ये अनसिक्योर्ड लोन में दिख रहा है। अनसिक्योर्ड लोन में? और वो इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री है, ओके। तो वो तो मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट नीचे लाने में हेल्प करेगा। जी जी सर मेरा एक लास्ट चीज मेरे को जाननी थी कि पहले हमारा स्टैंड क्लियर था कि हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में हम ये बिड नहीं करते हैं, पर क्योंकि अब इतना फंड का इशू आ रहा है, पेमेंट्स नहीं आ रहे गवर्नमेंट से, तो क्या अभी हम वो कंसिडर कर रहे हैं कि हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में बिड करेंगे क्योंकि वहाँ का पेमेंट साइकिल बेटर होगा? सर स्टार्टिंग से इंटेंट ऐसा नहीं था कि हम नहीं करेंगे, मतलब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो ऑब्वियसली हम करेंगे। जैसे पीएसयूज में भी हम कर ही रहे हैं काम, जैसे बेल का कर रहे हैं 250 करोड़ का, उसके अलावा भी जो
प्रोजेक्ट आते हैं प्राइवेट, अगर कुछ फ्रूटफुल लगते हैं तो हम करते ही हैं। अच्छा, प्राइवेट प्रोजेक्ट अभी कंपनी टेकअप कर रही है मतलब? अगर आएंगे, अभी फिलहाल नहीं है मेरी बुक्स पे, बट आएंगे तो 100% करेंगे। अभी अपार्ट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट अभी हम पीएसयू के अंदर भी फोकस कर रहे हैं। बेल का कर रहे हैं। पीएसयू का पेमेंट टाइमली आता है? हाँ, पीएसयू में सर ऑलरेडी टाइमली आता है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Our next follow-up question comes from the line of Lokesh Kashikar from Smith's Institutional Equities. Please go ahead. Yeah, hi. Thank you for giving me the opportunity once again. सर, ये जो अपना बिडिंग अभी तक सर हमारा इनफ्लोस कितना हुआ है? जो एक प्रोजेक्ट आया था 77 करोड़ का उतना ही है, और वी हैव गॉट मोर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग H1? उतना ही है जो हमने बिड कर रखे हैं, क्योंकि बिडिंग भी वो जैसे मैंने बताया कि अभी अग्रेशन से नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास विजिबिलिटी है ऑलरेडी, हेल्दी ऑर्डर बुक है, तो हमको अप्रोप्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी देख करके उसको बिड कर रहे हैं। तो करीब 3000 करोड़ का मेरा बिडिंग पाइपलाइन है जो अभी अंडर इवैल्यूएशन है, उनके रिजल्ट अभी भी आने हैं सर। ओके ओके सर, लेकिन अगर देखिए तो लास्ट क्वार्टर में भी करीबन हमारे 3000 करोड़ के ही थे, तो डू यू मतलब इज इट द अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कि जो बिड कर रहे हैं हम वहाँ पे अवार्डिंग नहीं हो रहा है, कि जो अवार्ड्स हो रहे हैं अभी भी वहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुए हैं जिसमें हम नहीं आए, और 2-3 प्रोजेक्ट और फर्दर बिड किए हैं, वैसा काफी सारे अंडर इवैल्यूएशन भी है जी। तो 3000 करोड़ में फिर ये वाटर वाले कितने होंगे और वो रेलवे वाले कितने होंगे हमारे? वाटर और डू यू थिंक कि वाटर में बिल्कुल भी अवार्डिंग ही नहीं है अभी? नहीं, वाटर वाले हैं सर उसमें, लेकिन जो डायरेक्ट जैसे जल जीवन मिशन के नहीं है, जल जीवन मिशन वाले नहीं, एडीबी फंडेड हुए, जायका वाले हुए, वर्ल्ड बैंक, जायका एंड अमृत स्कीम्स जो है सर वो वाटर सप्लाई में है हमारे। बाकी रिमेनिंग रेलवे के एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के। ओके ओके ओके। एंड जो हम अभी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कैसा है सर अभी? क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स देखते हैं, तो बिकॉज ऑर्डर इनफ्लोज एंड ऑर्डर अवॉर्डिंग हैज बीन ड्राइड अप ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, so the competition in we are seeing that it will be very healthy and cutthroat. So do you think कि वहाँ पे भी आपके सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड देयर विल बी अंडरकट ऑफ द प्राइसिंग, जिसके कारण हमारा मार्जिन भी प्रेशर में आ सकता है? So what is your view on that? कंपटीशन में सर एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो एज यूजुअल है, हर सेगमेंट में इतना ही है। तो जनरली कितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं सर हमारे इसमें? जब हम बीड करते हैं तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं सर? डिपेंड करता है, जैसे अगर 200 करोड़ से नीचे होता है तो 5 to 7 कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, एंड ज्योग्राफिकल वाइज भी काफी उसमें डिफरेंस आता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बिड करते हैं तो उसमें 2-3 कॉम्पिटिटर्स होते हैं, नॉर्थ इंडिया में करते हैं तो उसमें 7-8 बिडर्स भी आते हैं। अच्छा, बट डू यू थिंक कि मतलब हमारा 15 to 20% जो स्ट्राइक रेट है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा? यस, ओके, ठीक है सर, दैट्स द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, we will take that as the last question for today. I now hand the conference over to the management for closing comments. Thank you all for participating in this earnings conference. I hope we have been able to answer your questions satisfactorily. If you have any further questions or would like to know more about the company, please reach out to our IR managers at Valorum Advisors. Thank you. Thank you. On behalf of Vishnu Prakash R Pungalia Limited, that concludes the conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.